السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KBN نیوز۔ آئیے جانتے ہیں آج کی تازہ خبر۔ تلنگانہ فارمیشن ڈے، حیدرآباد میں ٹریفک الرٹ۔ تلنگانہ فارمیشن ڈے سیلیبریشن کے موقع پر حیدرآباد ٹریفک پولیس نے خاص ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ 2 جون کو سکندرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں تلنگانہ فارمیشن ڈے کی تقریبات منعقد ہوں گی، جن میں چیف منسٹر ریونت ریڈی شرکت کر رہے۔ صبح 7 بجے سے دوپہر 12 بجے تک پریڈ گراؤنڈ اور گرد و نواح کے علاقوں میں ٹریفک ریسٹرکشنز اور ڈائیورشن نافذ رہیں گے۔ بڑی تعداد میں عوام کی شرکت کے سبب ہیوی ٹریفک کنجیشن کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ٹریفک پولیس نے موٹرسٹ کو مشورہ دیا ہے کہ سفر سے پہلے پلاننگ کریں، آلٹرنیٹیو روٹس استعمال کریں اور ٹریفک ایڈوائزریز پر عمل کریں۔ تلنگانہ فارمیشن ڈے سیلیبریشن کے باعث حیدرآباد میں خاص ٹریفک بندوبست، عوام کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ فاطمہ شیراز لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ ہر اسٹوڈنٹ کا ایک خواب ہوتا ہے، ایک بہترین مستقبل کا خواب، اور اس خواب کو سچ بنانے کے لیے چاہیے صحیح رہنمائی، اسٹرانگ فاؤنڈیشن، کانفیڈنس اور ڈسپلن۔ ایڈمیشنز اب شروع ہو چکے ہیں انٹرمیڈیٹ کورسز کے لیے MPC، BPC، MEC اور CEC۔ بوائز کے لیے کیمپس ٹولی چوکی اور سعید آباد میں اویلیبل ہے، جبکہ گرلز کے لیے ٹولی چوکی اور ملک پیٹ کیمپس موجود ہے۔ سیٹس لمیٹڈ ہے، آج ہی اپنی سیٹ سیکیور کریں، ہمارے کیمپس کا وزٹ کریں یا ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ مانسون پریپیئرڈنس پر CM ریونت ریڈی کی ہائی لیول ریویو۔ تلنگانہ میں مانسون سیزن کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی صدارت میں سیکریٹریٹ میں اہم ریویو میٹنگ کا آغاز ہوا۔ ریویو میٹنگ میں ایگریکلچر، اریگیشن، میونسپل ایڈمنسٹریشن، پنچایت راج، ہیلتھ، ہوم، ہائیڈرا، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور فائر سروسز کے سینئر آفیشیلز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں آنے والے مانسون سیزن کے دوران ممکنہ بارشوں اور ان کے اثرات پر تفصیلی غور کیا جا رہا۔ ویدر ڈپارٹمنٹ کے آفیشل ساؤتھ ویسٹ مانسون EI نینو ایفیکٹ اور موسمی صورتحال پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن پیش کر رہے۔ مختلف ڈپارٹمنٹس کو مانسون کے دوران ایمرجنسی ریسپانس اور عوامی سہولیات کے لیے ایڈوانس پلاننگ پر ہدایت دی جا رہی۔ مانسون سیزن سے پہلے تلنگانہ حکومت الرٹ، CM ریونت ریڈی نے تمام ڈپارٹمنٹس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ CID کی بڑی کارروائی۔ CID نے ملٹی اسٹیٹ دفعہ بیٹنگ نیٹ ورک کا پردہ فاش کر دیا۔ CID DG چارو سنہا کے مطابق دہلی، گجرات اور پنجاب میں ریڈز کے دوران 11 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ انویسٹیگیشن کے دوران بیٹنگ ریکٹ کے انٹر اسٹیٹ لنکس بھی سامنے آئے۔ مزید تحقیقات جاری، نیٹ ورک کے دوسرے افراد کی تلاش تیز۔ ملٹی اسٹیٹ بیٹنگ ریکٹ پر CID کا سخت کریک ڈاؤن۔ And DafaBet is an app which was started in Philippines way back in 2004 and subsequently shifted to UK. And the organizers whom we have arrested, along with 9 other people, so a total of 11 members have been arrested. The 2 organizers whom we have arrested. ہاؤسنگ پروجیکٹس پر کریڈٹ وار، BJP کا کانگریس BRS پر حملہ۔ تلنگانہ میں ہاؤسنگ پروجیکٹ کو لے کر سیاسی تنازع گرم۔ BJP لیڈر وریندر گوڑ نے کانگریس اور BRS پر تیکھا حملہ کیا۔ کانگریس اور BRS مرکزی حکومت کے فنڈڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس کا جھوٹا کریڈٹ لے رہے۔ وریندر گوڑ کا الزام ہے کہ ہاؤسنگ اسکیم کے لیے فنڈز سینٹر نے فراہم کیے، لیکن سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے غلط دعوے کیے جا رہے۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ پر کریڈٹ کو لے کر سیاسی بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہاؤسنگ پروجیکٹ پر تلنگانہ سیاست میں کریڈٹ وار تیز۔ کویتا کا بیان، ریاست تقسیم ہوئی ہے، لوگ نہیں۔ TRS پارٹی چیف کلواکنٹلا کویتا نے عوام کے درمیان اتحاد اور بھائی چارے پر زور دیتے ہوئے اہم بیان دیا۔ کلواکنٹلا کویتا نے کہا کہ ریاست کی تقسیم ضرور ہوئی ہے، لیکن لوگوں کے دل اور رشتے آج بھی جڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے درمیان نفرت یا اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ کویتا نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر لوگوں کے درمیان نچچ اور تفرق پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تو TRS پارٹی خاموش تماشائی نہیں بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ پارٹی ہمیشہ امن، یکجہتی اور عوامی اتحاد کے لیے کھڑی رہے گی۔ کلواکنٹلا کویتا نے عوام کے درمیان اتحاد برقرار رکھنے اور تفرق کی سیاست کی مخالفت کرنے کا پیغام دیا۔
ఆలోచనతో ఇక్కడ పెట్టుకుంటే మాత్రం మంచిగా ఉండదు. ఇదివరకు ఒకసారి పెట్టుకున్నారు, రాష్ట్రం వచ్చింది, ఈసారి మూతి పనులు రాలిపడతాయి. కాబట్టి మీరు మా ప్రజల్ని తక్కువ చేసి మాట్లాడడం, మా మేధావుల మీద చేయాలనుకోవడం, లేనిపోని సాంస్కృతిక పెత్తనం మా మీద రుద్దాలనుకోవడం, మీకు అక్కడ రాజధాని కట్టుకోవడం చేతగాక మీ పొలిటికల్ పంచాయతీలను తీసుకొచ్చి మా మీద రుద్దడం. ముందు మీ రాజధాని కట్టుకోండి, మా జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలలో పోటీ. पूनम प्रभाकर का तीखा हमला, तेलंगाना मुद्दे पर सियासी बयानात गरम। तेलंगाना सियासत में लफ्जी जंग और तेज हो गई है। मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने आंध्र प्रदेश के सियासी क़यादत पर सख्त तनकीद की है। पूनम प्रभाकर ने कहा कि जो अपनी जिम्मेदारियों को मुकम्मल तौर पर निभा नहीं पा रहे वो तेलंगाना के मामलात पर सियासत करने की कोशिश कर रहे। उन्होंने एपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर पवन कल्याण को निशाना बनाते हुए कहा कि पहले अपनी रियासत के मसाइल हल करें, फिर तेलंगाना के मामलात पर बात करें। मिनिस्टर ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील के दौरान मुखालिफत करने वाले अफराद आज तेलंगाना के लिए हमदर्दी का इजहार कर रहे, जिसे अवाम कबूल नहीं करेगी। पूनम प्रभाकर ने दावा किया कि तेलंगाना के अवाम अपनी रियासत के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और सियासी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज, पूनम प्रभाकर का सख्त सियासी जवाब। నేను తెలంగాణ ప్రజలకు సంబంధించి ఆవిర్భావ దినోత్సవంగా తెలంగాణ ప్రజల వేడుకల్లో పాల్పంచుకుంటే ఎవరైనా పాల్పంచుకో. महबूबाबाद कलेक्टर ऑफिस में एक खातून के साथ बदतमीजी का वाकया सामने आया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक अटेंडेंट पर खातून से गैर मुनासिब रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगा है। महबूबाबाद मंडल के पार्वतगिरी गांव से ताल्लुक़ रखने वाली यकम्मा नाम की खातून पिछले कई दिनों से लैंड कंपनसेशन के सिलसिले में इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस के चक्कर लगा रही थी। इसी दौरान रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाले अटेंडेंट मुरली पर खातून के साथ गैर अखलाकी और गैर मुनासिब बर्ताव करने का इल्ज़ाम लगा। वाक़े के बाद खातून के रिश्तेदार और घर वाले शदीद बरहम हो गए और उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के बाहर मुलजिम पर चप्पल से हमला कर दिया। इस मंजर को देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई और कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। मुतासरा खातून ने कलेक्टर स्नेहा शबरी और रूरल पुलिस से रस्मी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत मिलते ही पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुरली को हिरासत में ले लिया और वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कर्नाटका कांग्रेस का दक्षिण कन्नड़ा को लेकर बड़ा दावा। कांग्रेस लीडर मिथुन राय ने डीके शिवकुमार की क़यादत पर भरोसा जताया। दक्षिण कन्नड़ा रीजन डीके शिवकुमार के अंडर बेंगलुरु से भी बेहतर बनेगा। मिथुन राय ने कहा है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास तवज्जो दी जा रही। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में रीजन तरक्की की नई मिसाल बनेगा। दक्षिण कन्नड़ा के मुस्तकबिल पर कांग्रेस का बड़ा विजन। दिल्ली में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का अहम इजलास। कमेटी चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने मीटिंग की सदारत की। इजलास में नीट, एनटीए और सीबीएसई एग्जाम्स से मुतल्लिक अहम मसाइल पर गौर किया गया। एजुकेशन सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और एग्जाम रिफॉर्म्स पर भी बहस हुई। नीट और सीबीएसई एग्जाम्स पर पार्लियामेंट्री कमेटी का फोकस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। 27 सीट्स के लिए नॉमिनेशंस का अमल आज से शुरू हो गया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक राज्यसभा की 27 सीट्स पर इलेक्शंस होंगे, जिनमें 24 सीट्स पर बेनियाल इलेक्शंस और महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा में एक एक बाई इलेक्शंस शामिल हैं। इसके अलावा बिहार और कर्नाटका लेजिस्लेटिव काउंसिल की 16 सीट्स के लिए भी इलेक्शंस कराए जाएंगे। कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स का तकर्रुर कर दिया है और इलेक्शन नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नॉमिनेशंस दाखिल करने का अमल 1 जून से शुरू हो गया है, जबकि नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 8 जून 2026 से शाम 3 बजे तक मुकर्रर की गई। नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटिनी 9 जून को होगी, जबकि उम्मीदवारों के नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून रखी गई। अगर इलेक्शन मुकाबले की सूरत इख्तियार करता है तो
तो वोटिंग 18 जून को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि वोट काउंटिंग शाम 5 बजे से शुरू की जाएगी। एग्जाम रो पर दिल्ली चलो कॉल, अभिजीत दिपके का प्रोटेस्ट ऐलान। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने एग्जाम रिलेटेड कंट्रोवर्सीज के खिलाफ दिल्ली में पीसफुल प्रोटेस्ट का ऐलान कर दिया है। अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पर जारी एक वीडियो में कहा कि वो 6 जून को इंडिया वापस आकर प्रोटेस्ट मूवमेंट का आगाज करेंगे। उन्होंने स्टूडेंट्स और सपोर्टर्स से अपील की है कि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करें और साथ मिलकर जंतर मंतर में प्रोटेस्ट की इजाजत हासिल करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन तक मार्च करें। दिपके का कहना है कि एग्जाम रिलेटेड लैप्सेस और कंट्रोवर्सीज ने स्टूडेंट्स में बेचैनी पैदा की है और इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने और यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करने की बात कही। कॉकरोच जनता पार्टी एक यूथ ड्राइवन सोशल मीडिया मूवमेंट है जो हाल ही में सोशल मीडिया पर काफी तवज्जो हासिल कर चुकी है। ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है, हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज उठाएंगे तो जरूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊंगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहां पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है। कर्नाटका सियासत में कैबिनेट एक्सपेंशन की तैयारियां तेज। मिनिस्टर आरबी तिम्मापुर का अहम बयान सामने आ गया। न्यू कैबिनेट के लिए लोगों के इंतखाब पर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। तिम्मापुर ने इशारा दिया कि नई कैबिनेट की तश्कील के लिए मशवरों का अमल जारी है। पॉलिटिकल सर्कल में मुमकिन नामों पर चर्चा गर्म, जबकि फाइनल फैसले का इंतजार बरकरार। कर्नाटका में कैबिनेट रिशफल की आहट, सियासी हलचल तेज। ओडिशा के कटक में फायर हिट फिश मार्केट का जायजा। मेयर ने मुतासरा मार्केट का दौरा किया और नुकसान का अंदाजा लगाया। ऑफिशियल्स ने रिलीफ और रिहैबिलिटेशन मेजर्स पर भी तफसीली बातचीत की। मुतासरीन को जल्द मदद फराहम करने की याद दहानी। आग से मुतासरा मार्केट रिलीफ एफर्ट्स पर फोकस। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।